काके लागू पाय बलिहारी काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय कबीरा गोविंद दियो बताय। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की मोटो भंडारो અને ખૂબ સાધુ સમાજ અમારા ગુજરાત કબીર પંથ સમાજના અને દૂર દૂરના પણ સંત મહાપુરુષોની ઉપસ્થિતિ હતી અને સાહેબની અપાર દયા સાહેબની કૃપાથી ઉત્તમદાસ સાહેબને પંજા કરવાના અમારા આચાર્ય ગાદી ફરસિયા ધામથી આવે છે અને એના માટે સાહેબ મને પણ ભેગા લઈ ગયા હતા અને અમે તો હવે સાહેબ જે આજ્ઞા કરે એ અમારે માથે ચડાવવાનું હોય અને પાલન જ કરવાનું હોય કેમ કે ગુરુજી કે શિષ્યને કરવાનું હોય એ પ્રમાણે સાહેબને જોડે જોડે જ અમે હતા અને આ પંજાનો જે કંઈ નાનું મોટું નીતિ નિયમ હોય એ પ્રમાણે મહંત સાહેબને એ પંજાના નિયમ પ્રમાણે વર્તવાનું હોય છે। આની અંદર આ પંજા તમે બધા જોઈ લો। આ આચાર્ય ગાદી સદગુરુ કબીર આશ્રમ ઠાકોર દૈયા ફરસિયા જિલ્લા રાયગઢ છત્તીસગઢ મહંતી પંજા પરવાના એ ઇસ્યુ થયું છે દિનાંક 23/7/2024 प्रमाणित किया जाता है कि श्री उत्तम दास जी साहेब गुरु मेहराम दास जी साहेब गांव गांधीनगर पोस्ट बोरी तहसील गांधीनगर जिला गांधीनगर गुजरात राज्य को जो कि हमारे पास महंती पंजा प्राप्त करने के लिए सेवक सती महंतों ने पान फूल लेकर प्रार्थना किया कि उपरोक्त प्रार्थी को महंती पंजा आपके द्वारा दिया जाना आवश्यक है जिसमें कि सतधर्म का प्रचार प्रसार हो सके। अतः उक्त भक्तों का विनम्र निवेदन स्वीकार करके श्री उत्तम दास जी को महंती पंजा प्रदान किया गया है। अतः आप सभी सेवक सती श्री उत्तम दास जी को महंत मानेंगे। कंठी माला दीक्षा संस्कार वाणी वचन चरण चरणामृत पान प्रसाद मर्यादा के को ध्यान में रखते हुए ग्रहण करेंगे। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सूचनाओं महंत श्री उत्तम दास जी साहेब को
चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के अनुसार सेवक सत्यों में व अन्य स्थानों में उपदेश, रहन सहन, खान पान व सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। अतिरिक्त सात्विक चौका आरती व गुरु की मर्यादा संबंधित सद्ज्ञान की ओर अग्रेसित करेंगे। प्रत्येक वर्ष पान प्रसाद, नारियल, फल फूल आदि लेकर उपस्थित होना आवश्यक है, जो गुरु मर्यादा है। आपका उद्देश्य लोक कल्याण एवं जनहितार्थ संबंधित सात्विक व पवित्र कार्य होने के कारण उद्देश्य विहीन या निष्काम भाव से अपना कार्य एवं फर्ज समझकर इस पुनीत व पवित्र कार्य को आप विधिवत संपन्न करेंगे। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा मूल वाणी के परंपरा अनुसार नाम, पान, प्रसाद, शब्द, सुरती, तत्व, लगन, माह, तिथि, पक्ष, दिन, चौघड़िया, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिण पर्व, सूर्य चंद्र, आंतरिक एवं बाह्य हस्त क्रिया के द्वारा विधिवत कार्य संपन्न करेंगे। कबीर साहब तथा गुरु वाणी वचनों के विरुद्ध कोई काम करने पर आपको ये पंजा निष्कासित किया जाएगा। सही और साक्षी परम पूज्य महंत श्री गोकुलदास जी साहेब, महंत श्री उगमदास साहेब, आचार्य पंजा देने वाले आचार्य साहेब श्री श्रवणदास साहेब, सदगुरु कबीर आश्रम ठाकुर दैया, करसिया धाम, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। આ પ્રમાણે આપણે ઉત્તમદાસ સાહેબને આ ગુરુગાદીના મર્યાદામાં રહીને ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર જે રીતે ભગવાનદાસ સાહેબ કરતા હતા, ભાઈરામદાસ સાહેબ કરતા હતા, એ પ્રમાણે સેવક સતીને સાહેબના માર્ગે વાળી સાહેબના હંસ બનાવવા માટેનો આ એક સાહેબ આપણને પંજા પરવાના અર્પણ કર્યા છે। અને સાથે સાથે આપણા દાદા ગુરુ આપણને આ વસ્તુ અર્પણ કરી છે, તેને આપણે ખૂબ સંભાળીને અને સાહેબનું નામ હર હંમેશના માટે રોશન થાય, સાહેબના કાર્યમાં અનેક લોકો જોડાય અને આ મંદિર સાથે અનેક લોકોની ભાવના કાયમના માટે બંધાયેલા રહે એવા સદભાવ સાથે બોલો સદગુરુ દેવ કી, सदगुरु कबीर साहेब बंदगी बंदगी सकल अंश को बंदगी साहेब। અને આ શબ્દ સાથે આપણે સંગ એમના દ્વારા એટલા માટે કરી શક્યા છીએ કે આ ગોલીજ ગામની અંદર આ કબીર સાહેબનો આશ્રમ છે। આ કબીર સાહેબનો આશ્રમ તો ભગવાનદાસ બાપુ હતા એમના દ્વારા અને માતાજી દ્વારા આ સ્થાન છે એને દીપાવવામાં આવ્યું હતું, પણ આજે આ સ્થાન ઉપર ઉત્તમ સાહેબ જ્યારે વિરાજમાન છે તો ઉત્તમ સાહેબને પણ આપણે તાળીઓના ગગડાટથી વધાવવા પડે, એમને પણ આપણે સન્માનવા પડે। તો ઉત્તમ સાહેબને પણ આપ સૌ તો તાળીઓના ગગડાટથી વધાવ્યા। હું પણ ઉત્તમ સાહેબ આપને નતમસ્તક છું અને આપના દ્વારા જે કામ થઈ રહ્યું છે, ધર્મનું કામ થઈ રહ્યું છે, આધ્યાત્મનું કામ થઈ રહ્યું છે, ગુજરાત ભરમાંથી લોકો અહીંયા આવતા હોય છે, ઠેઠ રાજસ્થાન સુધીથી લોકો અહીંયા આવતા હોય છે અને આ સ્થાનમાં આવી અને ઊંચા આધ્યાત્મિક વાઇબ્રેશન્સ લઈને જાય છે, એનો યશ આપને પણ આપવો પડે। તો આપનો હું નતમસ્તક છું અને આપ સૌ ફરીથી એમને તાળીઓના ગગડાટથી વધાવો। તો આ જ્યાં જ્યાં સત્સંગ થાય છે અને જ્યાં જ્યાં આ ભગવાનના ગીત ગવાય છે, ઈશ્વરના ભજન ગવાય છે અને જ્યાં જ્યાં કીર્તન થાય છે અને જ્યાં જ્યાં આનંદ આરતી થાય છે અને
ત્યાં જ્યારે ગોકુળદાસ સાહેબ જેવા મહાપુરુષની ઉપસ્થિતિ હોય તો ત્યાં ઈશ્વર સાક્ષાત ઉપસ્થિત છે માનીને આપણે તો થોડો નહીં હોય તો એમ્પ્લીફાયર આ બાજુ લઈ લો, આ બાજુ जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथनचं श्रीरामदूतं शरणं निर्मानमोहा जितशङ्गदोषा आध्यात्मनित्या संगदोषा आध्यात्मनित्या बोली सतगुरु कबीर साहेब भगवान की, बोली सतगुरुदास भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले तो इस तीर्थ समाधि धाम को प्रणाम करते हुए उत्तम दास साहब की चरणों में प्रणाम, गोकुलदास साहब जी को प्रणाम, दत्ता साहब जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ हम तो सबसे छोटे हैं, हम तो सुनने आए थे और आनंद लेने। यहाँ हमारा छोटा सा कुटिया आश्रम है, आश्रम का नाम भजनाश्रय धाम। पूज्य मुरारी बापू की हमारे सदगुरु है। हम तो एक ही बात कहते हैं, नाम जप करो। कबीरदास जी जो कहते थे कि जपने मनमा हरि का नाम। सभी संतों ने यही कहा, कबीर ने, मीरा ने, गुरु नानक ने, सबने कहा कि संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मीरा की बन गई कबीरा की बन गई। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मीरा की बन गई कबीरा की बन गई। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालनस्वरूपम्। स्थानाधीश महर्षि उत्तमदास साहेब, परम पूज्य बहन साहिबों, बंजारा साहेब, हमारे आगंतुक भक्त मंडल, साधक वृंद, वडील महोदयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज के प्रश्न की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने सांगोपांग रूप में समझाई। ये परंपरा जिसमें आज हम निर्वाह कर रहे हैं, भगवान दास साहब की चलाई हुई परंपरा है। अभी तो कौन जाने ठंडी कहाँ भर गई। भगवान दास साहब के टाइम में इतनी ठंडी पड़ती थी
कि रात्रि आए तो हम समझते थे कि बस अग्नि परीक्षा। उसमें रात को आरती होती थी, रात को आरती करते करते सवेरे 4 बज जाते। मसमा तो उस बात को 30 साल होता होगा, 30-40 वर्ष से परंपरा चालू है। एक बार मैंने कहा साहब ये बार बार पेपर में आया करता है कि ये सब जितने नदी किनारे हैं मैदानों के सब झोंके हटा दिए जाएंगे और यहाँ से वो मिलिट्री का कैंप बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। क्या बात है? बोले आप चिंता मत करिए, ये कुछ नहीं होने वाला। उसमें इतने जोर शोर से सब चर्चाएं चलती थी, अगले साल तो कुछ नहीं होगा, अगले साल तो ये गप्पा हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनका कोई चिंता मत कीजिए, ये बड़ जो है जिसके नीचे बैठता हूँ ना, ये बड़ कुछ नहीं होने देगा। इस बड़ के नीचे में बैठता हूँ तो मुझे ऐसी शांति मिलती है कि बड़ मानो कबीर साहब का स्वरूप। इस बड़ से जो शांति, इस बड़ से जो सौम्यता, शालीनता, इन सब का प्रादुर्भाव होता है तो क्या मालूम मेरी आत्मा में पंख लग जाती है। पर उन्होंने जिंदगी भर बड़ का सेवन किया, बड़ के नीचे बैठे रहते थे। मैं जब आऊँ तो भगवान दास साहब को बड़ के नीचे देखता। कभी कभी 2 बजे भी महात्मा लोग आए, 2 बजे भी महात्मा लोग मुझे बताते थे कि हम 2 बजे भी जाते हैं, कभी 3 बजे भी जाते हैं। तो भगवान दास साहब माता जी को उठाते, उठाने के बाद बोलते चलो भोजन बनाओ उसमें महात्मा क्या है क्या नहीं है ये देखना है, भोजन तैयार होना चाहिए। इस तरह की आगंतुक के साथ में प्रेम प्रीति भरी, स्नेह भरी जीवन की लीला उनकी, ये भक्ति का पराकाष्ठा का अद्भुत नमूना है। इसी पराकाष्ठा को आज निभाने के लिए उत्तम दास साहिब को सबने भार दिया है, मेहनत दी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ भार इन पर नहीं पड़ेगा। इस भार को वहन करने वाले बहुत बड़े बड़े श्रद्धालु भक्तजन आज भी हैं जो इनके ऊपर कुछ भार नहीं आने देंगे। और कबीर साहब तो महान है, दिव्य महापुरुष है। और कबीर साहब इसी प्राणी मात्र को दुखी नहीं देखना चाहते थे। धर्मदास साहब से बोलते, धर्मदास यहाँ मैं कुछ खेती करने नहीं आया, मैं मृत्यु लोक के अंदर में बंगला बनाने नहीं आया, मैं मेरे बच्चों की शादी करने नहीं आया। तो बाबू जी किस लिए आया हूँ? मैं आया तुम पास, मैं तुम सब के लिए आया हूँ। मैंने जब देखा कि ये सब कौवे बनते जा रहे हैं, कौवे बनते जा रहे हैं, कागड़ा बनता जाए છે એટલે માટે તમને કાગડાને બધાને હંસ બનાવવા માટે આવ્યો છે। અને તમને પ્રતીતિ ના હોય તો જો મારી પાસે કરવાનું છે। અને માણસ અત્યારે વાત કરી નામ એક કરવાનું। તમને અહીંયા પૃથ્વી મંડળમાંથી સ્વર્ગ, એને પછીના ખંડો, ઉપખંડો, એને પછીના દિવ્ય તત્વો, શિવની શિખર બધાના ઉપર જઈને તપાસ કરીશું તો નામનો બધે દિવ્ય ગુંજન છે, નામની ધજા ફેરાય છે। અને ખરેખર એ નામ તમારા મારા ચિત્તમાં બેસી જાય તો મોટું વાગી જાય। તકલીફ એટલી છે આપણે મોઢાથી નામ બોલ્યા કરીએ, મોઢાથી નામ બોલ્યા કરીએ, અંદરમાં ચરખા બીજા ચાલતા હોય। એ તો નામે સાથે નાટક છે। નામે તમે નામ બોલો, રામ 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 બોલો, મેં બોલું બીજો સામે સાંભળે તો મારા મોઢામાંથી નીકળી ગયો તો સાંભળે ને। जो प्रेम का प्याला पाए दे, सुरता को शब्द जुड़ाए दे। सुर शब्द नो ना तो मोटी भक्ति। जो प्रेम का प्याला पाए दे, सुरता को शब्द मिलाए दे। जो मन बैरी को खपाए दे, वो सतगुरु है सतगुरु। उस गुरु को मेरी बंदगी, वो दूर करे सब गंदगी। गुरु ની પરિભાષા નરસિંહ મહેતાની ભાષામાં, નરસિંહ મહેતા મેં તો એને માનું ગુરુ કે આ મનનું માથું ફોડે, બાકી ભગવાન કોઈ દિવસ આવીને મારી આગળ મનનું માથું ફોડ્યો નહીં, માયદી ગરદન તોડી નહીં, એમનો પ્યાલો પાયો નહીં, સુરતાને જોડી નહીં, દૂર કરશે નાતા જોડ દે। ગુરુની પરંપરા છે કે જ્યાં સુધી પોતાના શિષ્યને જગતના જગદીશ્વરના ખોળામાં ન બેસાડે ત્યાં સુધી ગુરુ શાંતિ ન માને, कोई दिवस ना माने। एक रात्रे खोज रही मन माही उतारी, खोज रही मन माही, खोज मन बैरागी।
जन्म जन्म के पाप हरे हो नाद पखावत वागे अनहद नाद पखावत वागे सागर भया सत्य नाम तिलोक साजा संत जन आरती करे प्रेम धारी धरे ढोल निशान मृदंग बाजा भक्ति साची किया नाम निश्चय लिया सुन के शिखर ब्रह्मांड गाजा सत कबीर सर्वत्र साहिब मिले बजो सत्य नाम क्या रंग राजा कबीर हम नीदर वेशा हम किया सकल पर वेशा हम दुआ सलामत देखा हम शब्द स्वरूपी देखा हम रोज मुंड में पिया हम पाका भकल फकीरा हम रमे कौन की नाल हम चले कौन की साथ हम सर्वजिन सहजे रमे हमरी वाल न पार वार भी हमरे पार भी हमरे नाना दरिया तीर सकल निरंतर हम रमे हम गहरे गंभीर खाली कलक कलक के माही यो गुरु कहे कबीर सत्य नाम की आरती निर्मल भया शरीर धर्मदास लोके गए भूमैया मिले कबीर धर्मदास लोके गए छोड़ सकल संसार हंसन पार उतारे ये गुरु धर्मदास परिवार सत तो करे कलाउले है ज्ञान ज्ञान साथी अच्छा वरवा पुरुष है सोलग लागो सत सत का भया प्रकाशा पूजा में लगावे न सेवा सदा ध्यान